Hello guys, my name is Roshan Nandurkar and you are watching my YouTube channel Java and Python Geek. So we are discussing Spring MVC project here. Okay, Spring MVC project here. Okay, we are not using many more JSTL tag here. Okay, just we are using JSTL on the core basis. Okay, so fully JSTL tag we are not using here. Okay, so you can use JSTL tag for like form, then for body, then for table. Okay, so many more JSTL tag available. Okay, so in the some previous session what we discussed there कि हमने वहां पे डिस्कस करा लाइक पहले सेशन के अंदर में हमने स्प्रिंग एमवीसी का सेटअप कैसे लगाते, देन सेकंड सेशन में पैरामीटर कैसे रिसीव करते व्यू टू कंट्रोलर, देन आफ्टर हमने थर्ड सेशन के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करना सीखे, देन हमने फोर्थ सेशन के अंदर में रिकॉर्ड रिट्राइव करना सीखे हमने व्यू के अंदर में व्यू कंट्रोलर टू व्यू, देन हमने रिकॉर्ड अपडेट करना और रिकॉर्ड डिलीट करना हमने वहां पे सीखे. ओके, ये कुछ हमने प्रीवियस सेशन के अंदर में डिस्कस करे. राइट, इन दिस सेशन व्हाट वी हैव टू डिस्कस हियर, वी हैव टू डिस्कस हाउ टू राइट लॉगिन फॉर्म. ओके, और हाउ टू डिस्प्ले लॉगिन फॉर्म. ओके, और हाउ टू perform login validation, how to perform login validation here we have to discuss here. Okay guys, so now first of all what we will do here, we will design a login form. So for that I will open getbootstrap.com site. Okay, and from there I will copy one example there. Okay, so now I will open doc section, and then from doc section, okay, I will click on form control. So then form control say, okay, this is our form control section, and then then from here we have to copy some any example here. Okay, any example I will copy from this section. So now I will select, I will select very first example I will copy from the here. So now then after what I will do here, I will click on web content web INF, and then यहाँ पे views में जाके मैं एक यहाँ पे पेज डिजाइन कर दूंगा, and that page I will say login.jsp guys. Okay, login.jsp. Okay, so this will be the login form guys. Okay, so now ये login page पे हमें क्या करना है कि हमने जो डिजाइन वहां से कॉपी करी है, हमने वो जो डिजाइन जो कॉपी करी है, वो डिजाइन हमें यहाँ पे पेस्ट करना है. बट बिफोर दैट हम यहाँ पे cdn लगाते गाइस. ओके, सो वी कैन राइट cdn हियर. सो फॉर दैट हम क्या करते हैं, ये जो index.jsp जो है, index.jsp पे ऑलरेडी हमने cdn लगाया है, और this head tag, in between head and head, we write something there. So in between head and head, मैं क्या करता हूँ, एक व्यूज पे जाके एक पेज बना देता हूँ. ओके, आई विल राइट JSP पेज, एंड दैट पेज आई विल से header.jsp guys. Okay, header.jsp. Okay, and in this header.jsp what I will write here, because ये जो head tag के अंदर में today we have link just bootstrap related CDN here. Okay, tomorrow we will write some JavaScript related CDN or some JavaScript related code, or we will write our own CSS there. So this CSS we need to write. We need to write on every page. Suppose any CSS or some CSS we required on some pages or every pages. So for that it is not possible. It is possible, but you need to write that kind of CSS on every page. So for that what we will do guys, so we will copy, or we will cut this header tag from index.jsp. We will cut this header tag. We will cut this header tag from index page, and I will paste it. I will paste it on I will paste that header tag. I will delete that first one. Delete whichever code JSP provides, whichever code Eclipse provide to me in the form of HTML. So that code, previous code I will delete, and then that header tag which I have cut from index.jsp, वो जो header tag जो है हमने index.jsp से जो कट करा है, that header tag I will paste it here.
सो इसका बेनिफिट क्या होगा मेरे को कि ये जो हेड जो है, ये हेड टैग मैं यहाँ पे यूज करूंगा। आई विल से, मैं जेएसपी को बोलूंगा जेएसपी प्लीज इंक्लूड, ओके जेएसपी प्लीज इंक्लूड, ओके जेएसपी प्लीज इंक्लूड विच पेज, head dot jsp page, head dot jsp page, and I can write in a single line. So now JSP क्या करेगा, ये जो head dot JSP के अंदर में जो भी कोड लिखा है, ओके दिस कोड, ये वाला कोड यहाँ तक के, ओके तो ये कोड क्या करेगा, इंडेक्स डॉट जेएसपी पे इंक्लूड करेगा। ओके जब हम प्रोजेक्ट रन करेंगे तो हेड डॉट जेएसपी पेज के अंदर जो भी हमने कोड लिखा है वो यहाँ पे क्या कर देगा, वो ओके रिप्लेस कर देगा। एंड द सेम वी विल राइट ओके एट दिस पोजिशन गाइस। तो ये हमने एडिट डॉट जेएसपी, यहाँ पे हमने नॉट हेड डॉट जेएसपी, ओके हम क्या करेंगे यहाँ पे, वी विल से जेएसपी okay colon include, we will say JSP colon include, and we will say header dot JSP guys. So in this way, okay in this way हमारे लॉगिन पेज पे अभी सेपरेटली सीडीएन लगाने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव इंक्लूडेड ओके बूटस्ट्रैप रिलेटेड सीडीएन गाइस, गॉट इट। एंड देन हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे क्या करना है, लॉगिन डॉट जेएसपी के अंदर में जस्ट इन बिटवीन बॉडी एंड बॉडी, जस्ट इन बिटवीन बॉडी एंड बॉडी, ओके we will write okay new container here, okay we will say div class container, div class container, okay div class container, and then we will write div class row, div class row, और div class row के अंदर ये हमने रो बनाया, रो के अंदर में ये जो हम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं बूटस्ट्रैप से, ये हम क्या कर देंगे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे गाइस। ओके वी विल पेस्ट दैट कोड एट हियर, ओके थोड़ा सा इंडेंट कर देते हैं हम कोड को, तो ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिए। तो अभी हम इसको थोड़ा सा डिस्प्ले करेंगे। अब हमने यहाँ पे ये जो हेड टैग के अंदर में इंडेक्स डॉट जेएसपी के अंदर में जो हेड टैग के अंदर में जो कोड था, हमने हेड डॉट जेएसपी के अंदर, और यू कैन राइट पेज नेम हेड पेज डॉट जेएसपी लिख सकते हो। अब आप अगर कंफ्यूज अगर हो गए तो हेड पेज डॉट जेएसपी लिख सकते हो। एंड दैट हेड पेज डॉट, अगर आपने हेड पेज डॉट जेएसपी अगर बोला तो हेड पेज डॉट जेएसपी आप इंक्लूड करोगे। मैंने इसे सेव करा तो बोलेगा जेएसपी, बोलेगा अपाचे, बोलेगा टॉमकैट, बोलेगा कि हेड पेज डॉट जेएसपी आपके प्रोजेक्ट के अंदर में नहीं है। डेफिनेटली वी डोंट हैव हेड पेज डॉट जेएसपी बिकॉज हमने वो पेज जो है हेड डॉट जेएसपी से सेव करा है। तो आप जो पेज है वही पेज क्या करोगे, इंक्लूड करोगे, आपका एरर चले जाएगा गाइस। ओके सो नाउ अभी हम लॉगिन डॉट जेएसपी पे आते हैं और ये वाला पेज हम डिस्प्ले करने के लिए ट्राई करते हैं। ओके सो बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप ये जेएसपी इंक्लूड करने से आप क्या पर्पस सॉल्व कर सकते हैं। कि मान लो कि आपके प्रोजेक्ट पे ये आपका मान लो हीडर है, हीडर पोर्शन है, ये हीडर पोर्शन है आपके प्रोजेक्ट के अंदर में, फुटर पोर्शन हो सकता है, ओके फुटर पोर्शन हो सकता है, मेनू बार हो सकता है। सो दैट header section, that footer section, that menu bar, okay, or right side bar or that left side bar आपको हर पेज पे लग सकता है। तो आप वो जो हीडर जो है, वो फुटर जो है, वो लेफ्ट साइड बार जो है, जो राइट साइड बार जो है, आप हर एक पेज पे नहीं लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करो, इसके लिए आप जेएसपी पेजेस बना के रखो। जो हीडर वाला जो टाइटल जो रहेगा और हीडर पोर्शन जो रहेगा, हीडर डॉट जेएसपी पे लिख के रखो। फुटर वाला जो सेक्शन जो रहेगा वो फुटर डॉट जेएसपी पे लिख के रखो। और वो जो पेजेस जो है वो पेजेस आप हर पेज पे क्या करो, इंक्लूड करो। जिसका एडवांटेज आपको क्या मिलेगा कि आपको हर पेज पे सेम एचटीएमएल आपको लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। ओके हर पेज पे आपको सेम एचटीएमएल लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, जिससे क्या होगा कि आपका टाइम भी सेव होगा। ओके और फ्रिक्वेंटली जो आप कोड जो लिख रहे हो, और फ्रिक्वेंटली जो कोड जो लिख रहे हो वो कोड भी क्या होगा, अवॉइड होगा। एंड थर्ड थिंग आपका क्या होगा कि एक, जैसे मान लो कि मेरे को, हमें यहाँ पे हेड डॉट जेएसपी के अंदर में कुछ चेंजेस करना है, ओके और मेरे को लग रहा है कि हमें लग रहा है कि हमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिंक करे और कुछ सीएसएस लिखे, तो हमने लिख ली है, तो हर पेज पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा गाइस। वो हर पेज पे रिफ्लेक्ट होगा। एक जगह पे हमने चेंजेस करे, so that changes will reflect on every page, that changes will reflect on every page, that will be the advantage of JSP include tag, JSP include tag guys। तो अभी हमें, हमारा टारगेट क्या है कि ये लॉगिन पेज अभी डिस्प्ले होना चाहिए।
तो हम लॉगिन पेज डिस्प्ले करने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा प्रोजेक्ट के अंदर में, हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर में हमें चेंजेस करना पड़ेगा गाइस। ओके, हमें थोड़ा सा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर में हमें चेंजेस करना रहेगा। ओके, बिकॉज हम स्लैश यूआरएल पे डायरेक्ट हम इंडेक्स पेज डिस्प्ले कर रहे हैं। वी आर डिस्प्लेइंग ओके ऑन स्लैश यूआरएल वी आर डिस्प्लेइंग ओके index.jsp गाइस। ये देखिए आपका इंडेक्स पेज आएगा। ओके, यू विल गेट योर इंडेक्स पेज ओके ऑन स्लैश। आपको इंडेक्स पेज डिस्प्ले नहीं करना है। ओके, यू डोंट वांट टू डिस्प्ले index.jsp, यू वांट टू डिस्प्ले लॉगिन पेज। स्लैश यूआरएल पे आपको कौन सा पेज डिस्प्ले करना है? लॉगिन पेज। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर में जाते, और ये कंट्रोलर के अंदर में हम यहाँ पे पेरेंट कंट्रोलर लाइक फॉर एग्जांपल पर्सन कंट्रोलर, और पर्सन कंट्रोलर के अंदर में ओके ये जो है पर्सन कंट्रोलर, ओके ये पर्सन कंट्रोलर है। ओके, पर्सन कंट्रोलर है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक न्यू ओके न्यू एक क्लास लिख लेते गाइस। ओके, वी विल राइट वन क्लास हियर एंड दैट क्लास आई विल से होम कंट्रोलर। होम कंट्रोलर गाइस, ओके होम कंट्रोलर। और ये होम कंट्रोलर को हम स्टीरियोटाइप वाला एनोटेशन डिनोट करते हैं। हम बोलते हैं कि यू आर अ कंट्रोलर क्लास। तो स्प्रिंग क्या करेगा, इसका भी ऑब्जेक्ट बना लेगा। ओके, बनाएगा गाइस इसका ऑब्जेक्ट। ओके, अगर हमें कंफर्म अगर करना है कि इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सो वी कैन राइट वन कंस्ट्रक्टर हियर होम कंट्रोलर। कंस्ट्रक्टर लिखा मैंने, बोला होम कंट्रोलर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। ओके, वी विल से स्प्रिंग ने ओके वी विल से सीस आउट व्हाट वी विल से, we will say home controller object created। okay, we can verify guys okay कि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्प्रिंग क्या करेगा, ओके जितने भी स्टीरियोटाइप वाले क्लासेस है सबके ऑब्जेक्ट बना के अपने कंटेनर के अंदर में सेट कर देगा, सभी ऑब्जेक्ट को अपने पास में रख देगा। और ये इसके लिए स्प्रिंग क्या करता है, सिंगलटन ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। ओके, ये सिंगलटन ऑब्जेक्ट क्या होता है, ओके तो आप मेरा जो जावा इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर वाला जो सेक्शन जो है, जो प्लेलिस्ट है, ओके आप थोड़ा सा आप उसमें देखिएगा कि व्हाट इज सिंगलटन क्लास, तो आपको पता चलेगा कि आप उसे आप देख सकते हैं ओके। तो वहां पे आपको पता चलेगा कि सिंगलटन क्लास क्या होता है। सिंगलटन क्लास जिसका कि सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो स्प्रिंग भी क्या करता है, हर एक कंट्रोलर क्लास का, हर एक सर्विसेज क्लास का बाय डिफॉल्ट सिंगलटन ऑब्जेक्ट अपने कंटेनर के अंदर में सेट कर देता है। तो हमने वेरीफाई करा यहाँ पे कि हमारा होम कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नाउ यू विल सी गाइस, आपका होम कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है क्या? यस गाइस, ओके सो होम कंट्रोलर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। स्प्रिंग ने होम कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है। तो अगर स्प्रिंग ने होम कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है, तो हम क्या कर सकते हैं, होम कंट्रोलर के अंदर से कुछ मेथड क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बिकॉज रूल है कि अगर आपको कोई क्लास के अंदर में कि कुछ अगर प्रॉपर्टी होना, मेथड होना, तो आपके पास में वो क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। आपके पास में नहीं है क्लास का ऑब्जेक्ट, लेकिन स्प्रिंग कंटेनर के पास में है। तो स्प्रिंग कंटेनर को क्या बोलते हैं कि हमने पर्सन कंट्रोलर के अंदर में जो मेथड लिखी है, स्लैश यूआरएल वाली जो मेथड जो लिखी है, ये मेथड मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। ओके, मैंने ये मेथड यहाँ से कट कर दिया स्लैश यूआरएल वाली गाइज। ओके, वंस अगेन आप देखिए, मैंने ये मेथड जो है, ये मेथड मैंने यहाँ से कट कर दी है, बिकॉज ये मेरी होम यूआरएल वाली मेथड है, स्लैश यूआरएल वाली। तो और ये मैं होम कंट्रोलर के अंदर में पेस्ट कर दूंगा गाइज। अब स्लैश यूआरएल पे ये मेथड क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी, होम मेथड एग्जीक्यूट होगी ये स्लैश यूआरएल पे। स्लैश यूआरएल पे ये मेथड एग्जीक्यूट होगी। मैं इसके अंदर में कमेंट सेक्शन डिलीट मार देता गाइस, जो अननेसेसरी ये कंफ्यूज कर रहा है मेरे को। तो ये मेरे को अभी सबमिट पर्सन वाला यूआरएल नहीं भेजना है, बिकॉज मेरे को अभी इंडेक्स पेज पे नहीं, हमें इंडेक्स पेज पे जम नहीं करना है, हमें जम करना है लॉगिन पेज पे। तो हमने लॉगिन पेज पे जम करना है, तो लॉगिन पेज हमारा डिस्प्ले होना चाहिए, तो लॉगिन डॉट जेएसपी इंक्लूड होगा। बटन वैल्यू जो है, ये बटन वैल्यू हमें भेजने की जरूरत नहीं, मैं इसे भी कमेंट कर देता। ओके, मैं इसे भी कमेंट कर देता, और ये इसे भी कमेंट कर देता। हमारा डायरेक्ट स्लैश यूआरएल पे कौन सा पेज डिस्प्ले होगा, लॉगिन डॉट जेएसपी। वी कैन वेरीफाई गाइस, वी कैन वेरीफाई कि हमारा लॉगिन पेज डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, रन एज ऑन सर्वर। सो नाउ ये हमारा लॉगिन पेज आना चाहिए, आ गया लॉगिन पेज हमारा आ गया है। ओके, लॉगिन पेज। ओके, तो ये लॉगिन पेज पे हम कुछ डिजाइन करते, लॉगिन पेज पे हम लोग कुछ डिजाइन करते। तो हम क्या कर रहे हैं कि लॉगिन डॉट जेएसपी पे आए। लॉगिन डॉट जेएसपी पे हमने यहाँ पे कंटेनर बोला है, यहाँ पे रो बोला है, और हम यहाँ पे क्या बोलते हैं,
ओके रो के अंदर में ड्यू वी विल राइट ड्यू क्लास कॉल एमडी हाइफन 6। ओके फर्स्ट 6 कॉलम के अंदर में हम ये लॉगिन फॉर्म बनाते। ओके ये ड्यू जो है इंडेंट करते और वो जो कॉलम वाला ड्यू जो है यानी ये ड्यू ओके आप देख सकते रिफ्लेक्शन मिल रहा है आपको। तो ये आपने 6 कॉलम के अंदर में मैं रिफ्रेश मार के देखता कि हमारा ये 6 कॉलम के अंदर में आ गया। एंड नाउ नेक्स्ट 6 कॉलम के अंदर में हमें क्या करना है। ओके नेक्स्ट 6 कॉलम के अंदर में हम यहाँ पे कुछ कंटेंट जो है ये कंटेंट हम यहाँ पे कुछ पेस्ट कर सकते हैं। मैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो डिटेल जो रहेगा लाइक फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट का आपको कुछ इमेज डिस्प्ले करनी है वट एवर आपको मैं एक फॉर एग्जांपल मैं ये कंटेंट हूँ ये कंटेंट कॉपी कर लेता ओके आप आपके प्रोजेक्ट पे यहाँ पे आपका जो आपके प्रोजेक्ट का जो डिटेल जो रहेगा वो डिटेल आप यहाँ पे ओके सेट कर सकते हैं। तो हम इसे चेक करते कि ये ओके ये कैसे आ रहा है। सो नाउ 1 मिनट गाइस ओके आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। ओके नाउ ओके यू कैन सी गाइस ये हमारा डिटेल आ रहा है और मैं ये चाहता कि ये रो जो है ये रो ओके ये रो बन रही है हमारे कंटेनर के अंदर में। तो मैं इसे क्लास लिख लेता लॉगिन रो ओके और लॉगिन ओके लॉगिन नाम का एक एक्स्ट्रा क्लास में यहाँ पे असाइन कर लेता। एंड देन मैं यहाँ पे क्या करूंगा गाइस हेड डॉट जेएसपी पे जाऊंगा और हेड डॉट जेएसपी पे ओके हम यहाँ पे क्या करते इन बिटवीन स्टाइल एंड स्टाइल ओके स्टाइल टैग के अंदर में ओके स्टाइल आई विल से टाइप एंड आई विल से टेक्स्ट स्लैश css okay and then I will write login class here. I will say login class हमने login class वहां पे असाइन कराएगा इस ओके login ओके एंड देन यहाँ पे हम बोल रहे कि मार्जिन ओके आई विल से मार्जिन हाइपन टॉप ओके मैं थोड़ा सा इसे 100 पिक्सल कर देता। सो नाउ चेक करते हमने ये इसके लिए लॉगिन क्लास लगा है तो ऊपर से मार्जिन 100 पिक्सल आना चाहिए आ गया ओके। आप यहाँ चाहो तो आप टाइटल सेट कर सकते हो देन उसके बाद में लॉगिन डॉट जेएसपी के अंदर भी हमारा कॉलम है ओके तो देन मैं बोलूंगा लॉगिन हाइपन कंटेंट ओके और लॉगिन पेज ओके टेक्स्ट ओके लॉगिन टेक्स्ट लॉगिन हाइपन टेक्स्ट नाम का एक क्लास लिख रहा होगा इस तो लॉगिन हाइपन टेक्स्ट नाम का वंस अगेन हम क्लास लिखते हैं और यहाँ पे मैं बोलूंगा डॉट क्या बोलूंगा मैं लॉगिन हाइपन टेक्स्ट नाम का मैंने क्लास लिखा गाइस सीएसएस के अंदर में एंड देन मैं बोलूंगा कि टेक्स्ट अलाइन आई विल से जस्टिफाई ओके टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई एंड देन यहाँ पे मैं बोलूंगा मार्जिन मार्जिन हाइपन टॉप मैं बोलूंगा 20 पिक्सल ओके एंड नाउ इसे आप चेक करोगे ये आपके टेक्स्ट आ रहेगा इस यहाँ पे आप इसको अगर आपको बॉर्डर अगर देना है तो आप बॉर्डर दे सकते हैं ओके बॉर्डर ओके हम बोलते हैं 1 पिक्सल ओके सॉलिड एंड देन आप बॉर्डर दे सकते ग्रे कलर का बॉर्डर हमने यहाँ पे से सेट करा ओके गाइस तो आपको ये बॉर्डर मिल रहा है आप चाहो तो बॉर्डर रख सकते हो नहीं रख सकते हो ओके और मैं निकाल लेता हूँ बॉर्डर ओके ये हमने बॉर्डर निकाल लिया सो कुछ इस तरीके से आप एक्स्ट्रा क्लासेस जो आपको लग रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। देन आफ्टर मैं हेड डॉट जेएसपी पे जाऊंगा और हेड नॉट ऑन हेड डॉट जेएसपी मैं जाऊंगा लॉगिन डॉट जेएसपी पे जाऊंगा और एक लॉगिन डॉट जेएसपी पे ओके लॉगिन डॉट जेएसपी पे हम क्या करते हैं यहाँ पे गाइस
ये जो कंटेनर जो है, कंटेनर को हम लॉगिन क्लास लगाते हैं यहाँ पे, ताकि हमारा कंटेनर ऊपर से मार्जिन सेट करें, हम वेरीफाई कर दें। ओके, सेम वी आर गेटिंग सेम रिजल्ट। और मैं एक एक्स्ट्रा रो कंटेनर के अंदर में लिख देता हूँ। ओके, आई विल से ड्यू क्लास, ऊपर में एक हम रो सेट करते हैं, ड्यू क्लास रो एंड ड्यू क्लास। ओके, आई विल से कॉल हाइपन md हाइपन 12 सेट कर देते, और यहाँ पे बोलते इन बिटवीन h1 और इन बिटवीन h2 एंड h2 वी कैन से, मैं बोल रहा हूँ लॉग इन। ओके, लॉग इन फॉर्म, ये हम टाइटल सेट कर रहे हैं। चेक करते हैं टाइटल सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये लॉगिन फॉर्म टाइटल सेट हो रहा है। गेटिंग गाइस? मैं ये चाहता हूँ कि इसको, ये रो को पैडिंग रहे, तो मैं बोलूंगा पैडिंग। ओके, मैं बोल रहा हूँ P4, P-4, ये पैडिंग आ रही है इधर उधर से। और हम हेड डॉट जेएसपी पे जाते, जो मार्जिन हमने 100 थोड़ा ज्यादा हो गया, मैं इसे 60 कर देता गैस। ओके, तो ये ऊपर में आ रहा है। सो नाउ कुछ इस तरीके से आपका ये लॉगिन फॉर्म आप डिजाइन कर सकते हो। ओके, नाउ अभी हम लॉगिन डॉट जेएसपी पे जाते हैं। ये हमारा, ये हमने लिखा लेबल एग्जाम्पल इनपुट, ये थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। इनपुट टाइप आई विल से टेक्स्ट, क्लास फॉर्म कंट्रोल। ओके, मैं बोलूंगा यहाँ पे आईडी फॉर, आईडी मैं इसको लिख रहा हूँ ईमेल। ओके, और यूजर नेम। ओके, नेम इज इक्वल्स टू आई विल से यूजर नेम। प्लेस होल्डर मैं बोलूंगा यहाँ पे एंटर यूजर नेम, और ये लेबल जो है, ये लेबल हम चेंज कर देते हैं। ओके, यूजर नेम। और ये हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट हम किसके लिए ले रहे हैं, ये आईडी के लिए ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसको नाम चेंज कर देते हैं। और नाउ चेक करते कि हमारे पेज पे, नाउ यू कैन सी गाइस। ओके, यूजर नेम, एंटर यूजर नेम, वी आर गेटिंग। एंड नाउ देन आफ्टर, ये सेम जो है ये मैं कॉपी कर रहा हूँ गाइस, एंड देन ओके, मैं बोलूंगा कि पासवर्ड। ओके, नेम पासवर्ड। ओके, एंड देन इनपुट टाइप मैं बोलूंगा पासवर्ड, और लेबल फॉर पासवर्ड, टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट भी डिस्प्ले होना चाहिए पासवर्ड। ओके, एंड एंटर आई विल से पासवर्ड, प्लेस होल्डर समथिंग। ओके गाइस, सो नाउ इन दिस वे, ओके, इन दिस वे आपका ये लॉगिन फॉर्म आ रहा है। चाहो तो आप इसको बॉर्डर वगैरह आप असाइन कर सकते हो। देन हमें बटन होना, तो हम बटन के लिए एक और रो बढ़ा देते। ओके, और हम यहाँ पे ओके एक बटन सेट करते हैं, एंड वी विल से इनपुट टाइप सबमिट। ओके, क्लास इज इक्वल टू बटन के लिए हम बोलते हैं btn, बूटस्ट्रैप से क्लास ले रहे हैं हम, btn इज इक्वल टू इनपुट। आईडी निकाल लेते हैं, नेम भी निकाल लेते हैं, बट इसका वैल्यू जो है, ओके, वैल्यू जो है, ये वैल्यू हम उसको सेट करते लॉग इन करके वैल्यू होगी, प्लेस होल्डर की जरूरत नहीं है। सो कुछ इस तरीके से आपने सबमिट बटन ले लिए वहां पे, जिसके के टेक्स्ट रहेंगे लॉगिन। जैसे आपने इस पे क्लिक करा, मैं ये चाहता हूँ कि कोई एक्शन के लिए वो जाए, तो हम यहाँ पे ये जो पूरा कंटेनर जो है, ये टोटल कंटेनर हम फॉर्म टैग के अंदर में डाल देते हैं। हम यहाँ पे बोलते हैं फॉर्म, ओके, एक्शन। ओके, एक्शन इज इक्वल टू, मैं बोल रहा हूँ डॉट स्लैश, ओके, वैलिडेट लॉगिन। ओके, वैलिडेट लॉगिन नाम का मैंने
एक्शन डाल दिए, मेथड मैं उसको पोस्ट सेट करूंगा और ये मैं कंटेनर के यहाँ पे ये बिकॉज ये हमारा कंटेनर क्लोज है, मैं बोलूंगा इसे ये कंटेनर क्लोज है, ये हमारा रो क्लोज है गाइस, रो क्लोज। तो ये हमारा फॉर्म टैग यहाँ पे क्लोज हुआ, तो वैलिडेट लॉगिन, ओके वैलिडेट लॉगिन, ओके। और इसको हम बोलते मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट। सो नाउ वी कैन रिफ्रेश एंड वेरीफाई। लॉगिन बटन पे मैंने जैसे क्लिक करा तो वैलिडेट लॉगिन वाला यूआरएल हमें लिखना रहेगा। तो वैलिडेट लॉगिन यूआरएल हम कहाँ लिखेंगे, वेयर वी विल राइट वैलिडेट लॉगिन, वंस अगेन वी विल राइट वन कंट्रोलर, ओके वी विल से लॉगिन कंट्रोलर गाइस, ओके लॉगिन रिलेटेड, ओके यूआरएल जो है आप यहाँ लिख सकते हैं, इसको भी हम @कंट्रोलर लिखते हैं, ओके। एंड देन यहाँ पे चाहो तो आप इसका भी आप कंस्ट्रक्टर लिख के रख सकते हो, जैसे हमने ये होम कंट्रोलर का कंस्ट्रक्ट, इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इससे आपको पता चलेगा ऑब्जेक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मैं बोलूंगा लॉगिन कंट्रोलर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। और इसके अंदर में हमें, ओके लॉगिन कंट्रोलर के अंदर में हमें एक मेथड लग रही है, वो मेथड जो है ये मेथड हम वो मेथड जो है वो मेथड हम पर्सन कंट्रोलर के अंदर से थोड़ा सा ये मेथड को हम कॉपी करते हैं, ओके। और चाहो तो आप इतनी बड़ी मेथड कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है, आप चाहो तो ये वाली मेथड हम कॉपी करते हैं कि हमें उतना कोड लिखना ना रहे। तो हमें लॉगिन कंट्रोलर के अंदर में आए, हम कौन सा यूआरएल हिट कर रहे गाइस, ओके कौन सा यूआरएल हम हिट कर रहे हैं, हम यूआरएल हिट कर रहे हैं वैलिडेट लॉगिन गाइस, वैलिडेट लॉगिन, ओके दिस यूआरएल वी आर हिटिंग। और इसके लिए हम यहाँ पे एक मेथड लिख देते हैं, कौन सी मेथड लिखते हैं, वैलिडेट लॉगिन, वैलिडेट लॉगिन, ठीक है। एंड नाउ ये यूआरएल हिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये हम वेरीफाई करते हैं। मैंने ये पूरा कोड डिलीट मार दिए और मैं यहाँ पे वापस से जाऊंगा लॉगिन डॉट जेएसपी पे वापस जाऊंगा, ये मेथड कॉल हो रही है कि नहीं हो रही है, आप चाहो तो एक स्टेटमेंट लिख के देखो, ओके वैलिडेट, ओके मेथड व्हाट वी कैन से execute, executed, okay so this line, okay we can check and verify, ओके। और जैसे हमने इस पे क्लिक करा, नाउ यू कैन सी गाइस, ओके यूआरएल हिट हो रहा है और वापस से फिर से कौन से पेज पे आ रहा है, वैलिडेट लॉगिन, यूआरएल हिट हो रहा है और फिर से लॉगिन डॉट जेएसपी पे आ रहा है गाइस, ओके। सो कुछ इस तरीके से हमने ये वाली ये जो यूआरएल जो है ये यूआरएल, ओके हमने हिट करा, वापस से कौन से पेज पे जा रहे हैं, लॉगिन डॉट जेएसपी पे। सो हमारा टारगेट क्या है कि आइदर हम लोग इंडेक्स डॉट जेएसपी पे जाएंगे, ओके और लॉगिन डॉट जेएसपी पे, दोनों में से किसी एक पेज पे जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे बोलते इफ, अगर इन कंडीशन अगर ट्रू अगर हुई, ओके इफ ट्रू यहाँ जाओ, ओके इफ ट्रू आप यहाँ जाओ, एल्स कंडीशन अगर फॉल्स अगर होगी तो आप लॉगिन डॉट जेएसपी पे जाओ, ओके। हम यहाँ पे कंडीशन वेरीफाई करेंगे, जो भी यूजर नेम एंड पासवर्ड हम उधर से सबमिट कर रहे हैं वो यूजर नेम एंड पासवर्ड, ओके वी विल वैलिडेट हियर एंड आइदर वी विल जंप ऑन इंडेक्स डॉट जेएसपी और वी विल जंप ऑन लॉगिन डॉट जेएसपी। ये कहाँ पे जा रहा है, इंडेक्स डॉट जेएसपी, ये कहाँ पे जाएगा, लॉगिन डॉट जेएसपी पे। गॉट इट गाइस। सो नाउ इन दिस वे, ओके इन दिस वे
तो अभी तो ऑलवेज कंडीशन ट्रू ही रहेगी, बिकॉज हमने हार्ड कोडेड वहां पे ट्रू लिख लिया गाइस। ओके, सो फिक्स हमने वहां पे ट्रू लिख दिया। बट कल जाके आपके पास में यूजर नेम और पासवर्ड नाम का पैरामीटर आएगा, आप बोलोगे यूजर नेम डेटाबेस के अंदर में रखे हुए यूजर नेम से मैच हो रहा है क्या, पासवर्ड डेटाबेस के अंदर में रखे हुए पासवर्ड से मैच हो रहा है क्या। अगर मैच अगर हो रहा है, ओके, सो देन आप क्या करोगे, उसे आइदर वैलिडेट करके, अगर मैच अगर हो रहा है तो इंडेक्स डॉट जेएसपी पे जाओगे और लॉगिन डॉट जेएसपी पे जाओगे। इंडेक्स डॉट जेएसपी पे आपको क्या क्या लेके जाना रहेगा, आपको बटन वैल्यू, एक्शन वैल्यू, पर्सन लिस्ट, ये सब चीजें आपको इंडेक्स डॉट जेएसपी पे लेके जाना रहेगा। लॉगिन डॉट जेएसपी पे लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज हमने लॉगिन डॉट जेएसपी पे हमने एक्शन जो है हमने फिक्स रखा है, इसे हमने डायनामिक नहीं रखा है। और बटन की वैल्यू जो है, बटन की वैल्यू भी हमने लॉगिन ही रखी है। तो आपने लॉगिन पेज पे कुछ भी लेके नहीं गए तो भी चलेगा, बिकॉज हम यहाँ पे लॉगिन पेज पे जा रहे हैं। लॉगिन पेज पे आप इतना एक मैसेज पास कर सकते हैं, एरर मैसेज, इनवैलिड लॉगिन और लॉगिन फेल्ड, ओके, और इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, सच काइंड ऑफ मैसेज यू कैन पास फ्रॉम, कहाँ से, कंट्रोलर से आप व्यू पेज पे आप ये मैसेज पास कर सकते हैं। ओके, सो आज हम यहाँ पे रुकते। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद अगर आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर में, जहाँ पे कि हम कोड करेंगे कि लॉगिन कैसे करा जाता, ओके, लॉगिन कैसे कर सकते, ओके, वैलिडेट कैसे कर सकते, दैट काइंड ऑफ कोड। ओके, ओके, दैट code we will discuss there. Okay, till then, tata, goodbye and see you guys. Okay.